Good morning, everyone. I am Varda, and on behalf of St. Anandram Jaipuria School, Vasundhara, Ghaziabad, I extend warm welcome to each one of you. I also extend warm welcome to our esteemed panelist, our speaker for today, and all the participants. As Bill Ayer states, your kids require you most of all to love them for who they are, but we end up spending our whole time trying to correct them. But as parents, we may knowingly or unknowingly end up correcting children rather than loving them as they are. And it is very difficult to know where to draw that line of discipline. What is loving for few can be spoiling for others, and vice versa. So, what should I expect out of my child? Are my expectations realistic? What should be a realistic approach to parenting towards handling our children and without harming them for the lifetime? Although these questions sound simple, they always need an expert to answer them. And who else can answer them better on such an eminent platform than Dr. Aruna Bruta? Dr. Bruta has more than 40 years of experience in the field of mental health, and she is a revered mind-soul transformation expert. On panelists, we are privileged to have our beloved National Awardee Principal cum Director, Ms. Manju Rana ma'am. Under her dynamic leadership, the school has soared high and reached the present position of #1 in Ghaziabad. We are also joined by Ms. Indu Kohli, Headmistress, Junior Wing, who has vast experience of working with young children. We also have Ms. Sonali Prakash, the Admissions Manager, who persistently works to bridge the gap between the family and school. Before we begin formally, please note that you're requested to type your questions in chat box or in Q&A section. We have reserved some time towards the end of the session for question answer round. Now, without further ado, I would like to request Honorable Ms. Manju Rana ma'am to formally welcome and introduce today's keynote speaker, Dr. Aruna Bruta. So thank you, Varda, for that such a kind introduction. And it is my great honor and pleasure to introduce Dr. Aruna Bruta, a globally acclaimed psychologist and a revered mind, body, soul transformation expert for over 4 decades of inspirational life makeover practice. A MA in psychology and a doctorate from Delhi University, Dr. Bruta is a very popular mental health guide, psychologist, columnist, book, research, paper, author, radio, TV talk expert, and a leading employee wellness consultant, corporate mind muscle therapies advisor specialist, and a passionate teacher trainer. Immersed in the latest scientific breakthroughs, soaked in the global best practices, and anchored in centuries-old cultural wisdom collated from all over the world, Dr. Bruta's success expertise is a rare fusion of intellect, passion, and compassion. Her numerous research breakthroughs, ongoing popular publications, well-attended group motivation training sessions, regular public counselings over radio, TV, print media, and a successful individual counseling practices makes her a uniquely experienced mind, muscle, personal power expert whose vast experience continues to get better as she arrives to help people become more happy and better, simple and common sense ways. Her life mission is of unlocking the many secrets of mind transformation and demystifying everyday success paths for common man.
And to achieve it, she trains people in better self-management, I think, which every one of us requires in today's time, life stage role responsibility, understanding, handling psychological disorders and mental pressures, which all of us are going through during this pandemic, life disaster management, and list is endless. Every time I meet Dr. Bruta, I always find her to be more beautiful, more younger, full of enthusiasm and full of energy. With these, once again, we are truly honored to have Dr. Bruta amongst us as a keynote speaker for this webinar organized by the Jaipuria Group. And Dr. Bruta, it's always a pleasure to be listening to you, and it'll be a great honor for me. It's been after a long time that I've got a chance to interact with you and to listen to you, and I really, really look forward for this session. So, and I also welcome the other panelists on board, Sonali and Indu, who, Vardha, of course, is there, they're part of my team, and all the attendees, and I'm sure it will be a fruitful session. Thank you so much. Thank you, ma'am. Over to you, I think, Dr. Bruta. Thank you, ma'am. Can you hear me? Yes, of course we can, loud and clear. And can you see me? Beautiful, yes, we can. ये मैं क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का इतना नॉलेज होता नहीं ना, तो मैं कंफर्मेशन ले रही हूँ। नहीं, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मैं एक सवाल पहले आपसे पूछूंगी, जो पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, इनके बच्चे किस एज रेंज में हैं? मैम 2 to 5 years majorly. All right. तो सबसे पहले तो थैंक यू, मेरे बारे में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रही हैं। मैं इधर उधर देख रही थी, मेरे बारे में बोल रही है, क्योंकि ब्रूटा साहब तो ये सब मानते ही नहीं मेरे बारे में। वो कभी नहीं कहते कि मैं ठीक हूँ, वो कहते हैं तू गलत ही है। सो आई थिंक जो मदर्स बैठी हुई हैं मुझे सुनने, वो मेरे साथ आइडेंटिफाई करेंगी कि हाँ, हमारा भी यही हाल है। राइट नाउ, मैंने इससे क्यों शुरू किया? इससे इसलिए शुरू किया कि जब पति पत्नी की निंदा या निरादर करते हैं या उसके बारे में मजाक उड़ाते हैं, बच्चे सुन रहे होते हैं। जब बच्चे सुनते हैं, आप ये मत सोचना कि 2 साल के बच्चे को अकल नहीं, लैंग्वेज नहीं है, लेकिन मुझसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट वो 2 साल का बच्चा है, क्योंकि वो देख रहा है मेरी माँ अपसेट है या खुश है या डिस्टर्ब्ड है, थोड़ा बहुत उसको जानकार होता है, और उससे वो इनसिक्योर हो जाता है। और हमने पहली बात का ध्यान रखना है कि अपने बच्चों को इनसिक्योर, असुरक्षा की भावना नहीं आने देनी चाहिए उनके अंदर। सो ये पेरेंट्स सोचें। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि आज पेरेंट्स को मैं क्यों एड्रेस कर रही हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ मंजू मैम कि पेरेंट्स सबसे छोटे बच्चे होते हैं घर में। बिल्कुल, वो बड़े होते ही नहीं हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं, पेरेंट्स चाहते हैं हाँ ये तो बोल ही नहीं रहा। अरे बोल लेगा। एक चार्ट किसी पीडियाट्रिशियन से या किसी साइकोलॉजिस्ट से या स्कूल काउंसलर से ले लीजिए कि लड़के किस उम्र में बोलना शुरू करते हैं और लड़कियां किस उम्र में शुरू करते हैं। ये डेवलपमेंटल डिफरेंसेस जेंडर्स में होते हैं। लड़कियां जल्दी बोलती हैं, लड़के थोड़ा टाइम लेते हैं बोलने के लिए। मैंने ये नहीं बोला कि अगर 5 साल का बच्चा बोल नहीं रहा तो घबराओ नहीं, मैंने ये नहीं कहा। अगर 5 साल का बच्चा बोल नहीं रहा बिल्कुल, तो डेफिनेटली साइकोलॉजिस्ट को मिले और स्पीच थेरेपिस्ट को मिले, ये बहुत जरूरी होता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जब सोनाली मैम ने मेरे को कांटेक्ट किया, आई एम ग्रेटफुल टू यू सोनाली मैम, मुझे कहा बोलने के लिए, तो मैंने सोचा हो साइकोलॉजी को कह रहे हो बोलने के लिए,
हिंदुस्तान में तो लोग सोचते हैं पागल आदमी जाता है साइकोलॉजिस्ट के पास, क्योंकि मैं हैरान होती हूं कि ये जो बच्चे हैं, कुछ भी अनबन, कुछ भी आपको अलग लगता है तो हम कहते हैं कि भाई किसी साइकोलॉजिस्ट मिलो, तो इमीडिएटली कहते हैं मेरा बच्चा कोई पागल है, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं। मान लीजिए कि मैं आपको कह रही हूँ मंजू मैम, मुझे बदन में दर्द हो रही है, बुखार सा लगता है, कुछ बताओ मैं क्या करूं। तो मंजू मैम कहती हैं अरे अभी तक डॉक्टर को नहीं दिखाया, दिखा क्या पता वायरल हो, क्या पता डेंगू हो, क्या पता स्वाइन फ्लू हो, क्या पता निमोनिया हो। मतलब बिना मेडिकल डिग्री लिए भी सारी बीमारियां जो शारीरिक है उनके बारे में आपको पता है। आपने मुझे ये नहीं कहा तेरा बदन टूट रहा है, तेरा ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो तुझे कैंसर है, आपने ये नहीं कहा। लेकिन मैंने कहा मंजू मैम 6 दिन हो गए, नींद नहीं आती, गुस्सा आता है, दिल करता है किसी को मार दूं, दिल लगता काम में, कोई साइकोलॉजिस्ट बताओ ना, मैं कहाँ जाऊं। तो मंजू मैम कहती पागल है, वहां पहुंच पागल है। क्यों? मैं साइकोलॉजिस्ट को बिना पागल हुए नहीं मिल सकती। जितनी शारीरिक बीमारियां हैं उतनी ही मानसिक बीमारियां हैं, पागल कोई नहीं है। ये बीमारियां हैं और रिसर्च बताती है कि अगर दवा की जरूरत है तो साइकाइट्रिस्ट को मिलिए, और अगर काउंसलिंग की जरूरत है तो साइकोलॉजिस्ट को मिलिए, और अगर दोनों की जरूरत है तो दोनों देखिए। फिर मुझे पेरेंट्स कहते हैं आदत पड़ जाएगी दवाइयों खाने की। क्यों? डायबिटीज की दवाई नहीं खाते, हाई ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खाते, क्या बोल रहे हो आप? हार्ट की दवाइयां नहीं खाते, आप तो दवाई की बात कर रहे हो। मुझे लगता है मुझे शायद 40 साल हो गए होंगे, 50 साल हो गए होंगे विटामिन बी खाते हुए। जब मैं छोड़ने की करती हूँ मेरी आंख फड़फड़ाती है, मैं विटामिन बी खाती हूँ, मैं ठीक हो जाती हूँ। तो क्या इसकी भी आदत पड़ गई है? ऐसा कुछ नहीं होता। बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा लाइफस्टाइल क्या है। हम बिना लाइफस्टाइल चेंज करे दवाइयां ही फूकते रहें तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, राइट? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नीड बेस्ड रखें सब कुछ, पर इस एटीट्यूड को त्याग दें कि हम कोई पागल हैं जो हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। अच्छा आप पागल तो नहीं हो, तो फिर अपनी जन्म पत्री क्यों दिखाते हो? राहु केतु को क्यों दिखाते हो? आप तावीज क्यों पहनाते हो? क्या उससे जादू हो जाएगा? एक बार मैंने पूछा कि आप अच्छा दिन निकालना चाहते हैं, तो जब हार्ट का ऑपरेशन होना होता है तो क्या आप पूछ के अच्छा दिन निकालते हो तब डॉक्टर साहब आपके सर्जन फ्री होंगे? सो ये जो वहम है वो गलत है। आपको विश्वास है, मैं विश्वास नहीं तोड़ूंगी, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये कोई विद्या नहीं है। किसको आती है मुझे नहीं पता। तो हमें इसके साथ साथ आप दिखाओ राहु केतु, आप अंगूठियां पहनाओ, आप दान पुण्य करवाओ, आप यज्ञ करवाओ, जो मर्जी करवाओ, लेकिन मनोवैज्ञानिक को भी इंक्लूड कर लो ताकि आप दिल की बात कर सको। ये बहुत जरूरी है। ऐसे में आप करोगे तो पर्सनैलिटी बनती जाएगी, क्योंकि आप देर करी जा रहे हो। तो मैं डरा नहीं रही हूं, समझा रही हूं कि जितने नए नए इलाज निकलते हैं उसमें कोई तुक होता है, कोई साइंस होती है। अगर ये सब पागल आदमियों का इलाज है तो जितनी देश हैं, जितने सब यूनिवर्सिटीज में जो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट्स हैं या जितने हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो साइकाइट्री डिपार्टमेंट्स हैं दवा दारू के लिए, तो वो भी सब बंद हो जाने चाहिए। सिर्फ राहु केतु दान पुण्य पूजा करवा दीजिए, अंगूठियां पहन लीजिए, ठीक हो जाएगा।
ऐसा नहीं होता। इसलिए आज मंजू मैम ने सोचा कि भाई एक थोड़ा सा रियलिस्टिक पेरेंटिंग कर लें, एक दूसरे के टिप्स लेने। और मैं मजाक भी आपके साथ करूंगी कि 40 साल पहले मंजू मैम, मैं एक सेशन ले जा रही थी किसी ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में, एंड PSU मतलब थोड़ा प्राइवेट होता है एंड गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होता है, तो तब कॉर्पोरेट्स कहाँ थे, नहीं थे। तो मैं जा रही थी पेरेंटिंग सेशन लेने। तो मेरी मदर इन लॉ मुझसे पूछती हैं, आज तो संडे है, तू कहाँ जा रही है? तो मैंने कहा बीजी मैं किसी ऑफिस में जा रही हूँ, मेरा आज मेरी वर्कशॉप है। तो कहने लगी संडे को भी वो ऑफिस वाले आते हैं? मैंने कहा हाँ आते हैं। तो कहने लगी अच्छा तो किस चीज पे बोलूंगी? मैंने बोला मैं उनको बताऊंगी कि अच्छे माँ बाप, समझदार माँ बाप कैसे बनते हैं। तो कहते हैं हाँ तू बताएगी, मेरे को साथ ले चल, मैं उनको बताऊंगी तू कैसी माँ है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी दर पीढ़ी पेरेंटिंग स्टाइल्स बदल रहे हैं, मेरा ये कहने का मतलब। तू अपने बच्चे को उस दिन तूने मारा था ना? मैंने कहा हाँ बीजी मार, गलत है, खबरदार तूने उसको हाथ लगाया। मैंने कहा आप तो बड़ी समझदार हैं। तो मैंने कहा आपने अपने बेटों को कभी नहीं मारा? तो मेरे हस्बैंड कहते हैं अरे मार 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 के बिल्कुल माँ बना देती थी। ये उम्र से समझ में आती है। क्यों? क्योंकि तब कोई समझाने वाला नहीं था। आज हम लोग हैं। मैं नहीं कहती कि मैं बेस्ट मदर हूं, ना मैं मंजू मैम की तरह कहती कि मैं बेस्ट साइकोलॉजिस्ट हूं, नहीं हूं। बिल्कुल आपकी तरह इंसान हूं, कुछ भी सिखाने नहीं आई, शेयर करने आई हूं कि आप में और मेरे में क्या हो सकता है अच्छा, जिससे आपके बच्चे मेरे बच्चों से ज्यादा अच्छे बने। मैं सिर्फ अपनी जितने एक्सपीरियंसेस हैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जो गलतियां मैंने करी वो आप ना करो। तो मैं वरना कौन होती हूँ आपको बताने वाली कि आप अच्छी माँ हो, समझदार माँ हो, नहीं हो। हर माँ अपने बच्चे को बढ़ के प्यार करे। हर पिता अपने बच्चे की सुरक्षा चाहता है। हर पिता चाहता है कि मेरा बच्चा एक बड़ा आदमी बने, मेरे से बढ़कर आगे जाए। सो माँ बाप जो हैं वो इतने प्यारे प्यारे कातिल होते हैं, कातिल कि बच्चे का मलिया मेट कर देंगे, लेकिन इंटेंशन बहुत अच्छी होती है उनकी, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के कोई प्यार नहीं दे सकता। ये तो मैं मानती हूँ। प्यार है तो आज यहाँ बैठे हो ना, प्यार नहीं होता तो यहाँ क्यों बैठते आप बोलते अरे ये तो बक बक कर रही है, चलो चलो यहाँ से चलें, चाय पिए। हाँ, और मैं कहती हूँ नहीं, मेरे को थोड़ा सा सुन लो, साथ साथ चाय पी लो। आप तो अपने घर पे ही हो, चाय पी लो साथ साथ, पर अब बनाने के लिए उठ के मत जाना कहीं, यही रहना। ओके, ऑलराइट। कई पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि हम जो कहते हैं हमारा बच्चा कहता है नहीं नहीं। तो मैं कहती हूँ ये बताओ नहीं करना कहाँ से सीखा? आप ताज्जुब करोगे, एक रिसर्च ये भी हुई है कि 5 साल की उम्र तक एक बच्चा 5 लाख बार ना 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 कर ना कर, यहाँ ना बैठ, वहां ना बैठ, ना सुनता है। 5 लाख बार, और 5,000 बार हाँ सुनता है, हाँ कर ले, हाँ बहुत अच्छे, बहुत प्यारा राजा बेटा। 5,000 बार
5,00,000 बार ना ना। और इसका मैं आपको सबूत देती हूँ कि पहली बार बच्चा डरा कब और पहली बार बच्चे ने आपका गुस्सा कब देखा। आप देखो, छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, आपके पास ऐसे है, आप उसे कितने प्यार से देखते हो, ऐसे आपकी पेंटिंग है, आपकी क्रिएशन है, आपका ईश्वर है, आपका खुदा है। लेकिन जैसे वो थोड़ा थोड़ा आपकी बाजू में फिट आना नहीं करता, बड़ा हो रहा है, तो वो घुटनों के बल रेंगता है। आप देखो वो कहाँ जाता है, बिजली के कनेक्शन में उंगली डालने, घुटनों के बल। और आप बड़ी ऊंची आवाज में कहती हैं नहीं। अब उसको क्या पता ना क्या है, हाँ क्या है। अभी तो वो दूध पी रहा है, अभी तो बस प्यार ही ले रहा है, सबसे प्यार ले रहा है। वो पलट के पीछे देखता है, नहीं क्या होता है, क्या कह रही है। वो सुनता है, उसको समझ नहीं आती, बिकॉज अभी तक उसके अंदर वोकैबुलरी नहीं। ये पहली ना है, वो समझता नहीं है। वो फिर घुटनों के बल चल चल के फिर उंगली उसके अंदर डालने को करता है। माँ कहती है मार दूंगी, मर जाएगा, बिजली लग जाएगी, शौक आ जाएगा, क्या कर रहा है समझ में नहीं आती। और उसको झिकझोर के कलेजे के साथ लगाती है, अपनी तरफ से सेफ्टी सिक्योरिटी दे रही है, लेकिन चिल्लाकर। अब वो क्या जानता है आप क्या बोल रहे हो, ग्रीक बोल रहे हो, क्या लैंग्वेज बोल रहे हो, बिजली है, शॉक आ जाएगा, वो क्या होता है। मैंने तो कभी ये सुना ही नहीं, पिछले जन्म में तो याद नहीं क्या सुना था क्या नहीं सुना था, अभी सुन रहा हूं। और फिर अभी ब्रेन डेवलप नहीं है, तो मेमोरी शार्प नहीं है, वो फिर नीचे आपने उतारा, वो फिर वहीं पहुंच गया। क्या कहते हैं साइकोलॉजी में, ढीठपना नहीं कहते, नहीं। वो क्यों उंगली डालना चाहता है स्विच और प्लग के अंदर, एक्सप्लोरेशन। ये मेरे हाथ हैं, ये मेरी उंगलियां हैं, ये क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। दिस इज एक्सप्लोरेटरी बिहेवियर। तब आप उसे डांटती हैं, खुद टेंस नर्वस एंग्शियस हो जाती हैं, क्योंकि जरा सा चने में कड़छी डालने गई और पीछे से महाशय जी तो चल पड़े प्लग की ओर। ठीक है, तो आप डर गई, नर्वस हो गई, आपने नर्वसनेस से उसे उठाया। आप क्या ट्रांसमिट कर रही हैं जानती हैं, अपनी नर्वसनेस उसमें। ये वाली चीज से घबराना चाहिए। पर जब वो 5 साल का होता है तो आप कहते हो ये तो इंजीनियर बनेगा। कैसे बनेगा, वो तो बिजली से डरता है। थोड़ा सोचो कि हम मना जरूर करें, ढंग से करें, चीख झाड़ा न डालें, नर्वस न होए। हाँ, बच्चा पैदा करना आसान है, बच्चा पालना बहुत 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 मुश्किल है। बच्चे का बाप बनना बहुत आसान है, बच्चे की माँ बनना बहुत मुश्किल है। कई बार मैं मदर से पूछती हूँ, मैम आप क्या करते हो, वो मुझे क्या जवाब देती है, मैम आई एम जस्ट अ हाउसवाइफ। जस्ट और काम ही नहीं कहीं खत्म होता घर का, आप कह रहे हो जस्ट अ हाउसवाइफ। तभी तो लोग औरतों की इज्जत नहीं करते, क्योंकि खुद ही आप अपनी इज्जत गिरा रही हैं। आपको बड़ी प्राउडली कहना चाहिए, मैं हाउसवाइफ हूँ मैम, मैं घर चलाती हूँ। क्योंकि सबसे मुश्किल काम है घर चलाना।
हस्बैंड उठ के, सास उठ के, औरतें ही औरतों की दुश्मन है, कह देंगी ये है झल्ली है, क्या करेगी, पराठे बनाने तो आते नहीं, सरसों का साग बनाना तो आता नहीं, मेरे हाथ का देखो मैं कितना अच्छा बनाती हूँ। अरे मदर इन लॉ यही नहीं याद करती कि आपको 60 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो बच्ची है अभी, सीखी है बनाना, अपने से क्यों कंपेयर करते, बल्कि उसको कहो बहुत अच्छा बनाती है, देखो तो आगे कितना अच्छा बनाएगी। सो मेरा पहला पॉइंट ये था कि हम हैं जो बच्चों को ना करना सिखाते हैं, फिर हम ही तड़पते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं। हम उनको बोलो खाना खा लो, नहीं, राजमा खा लो, नहीं, नूडल्स दे दो, क्यों, आपको नहीं पसंद वो नूडल्स खाए तो वो ना जरूर करेगा, भले ही उसको राजमा कितने अच्छे लगते हो, उसने ना करना सीखा है। 11 साल का एक लड़का मेरे पास आया, आई थिंक लास्ट ईयर या इसी साल में, ध्यान नहीं है, कहने लगा, मैंने कहा बेटे आपका क्या नाम है, ना, मैंने कहा आप बताना नहीं चाहते, मेरा नाम है ना, क्यों आपका नाम ना क्यों है, क्योंकि मेरी माँ, मेरे पापा, मेरी दादी, मेरे दादू सब इसी तरह मुझे हर वक्त ट्रीट करते हैं, ये मत करियो, ये ना कर, ये वहां मत जाना, बाहर मत जाना, 6 बजे अंदर आ जाना, और अब तो जाने ही नहीं देते, तंग आ गया हूं घर में रह रह के, टीवी नहीं देखने देते, आंखें खराब हो जाएंगी, खुद जितना मर्जी देख लें। ये बच्चा बोला है मुझे, आप देखिए बच्चे में कितना विद्रोह है। सो मैं कहती हूँ कि बच्चा पैदा करना आसान है, पालना बहुत मुश्किल है। आपको पहले मैच्योर होना चाहिए, धीरज धैर्य होना चाहिए, आपको पहले पता होना चाहिए कि बच्चे ऐसे होते हैं। मेरा पहला बच्चा रात को सोता नहीं था, रोटा साहब को बहुत जल्दी थी, बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं उनको, मैं मैच्योर नहीं थी, तो वो रो रहा है और ब्रोटा साहब देख रहे हैं, कहते हैं ये सोता क्यों नहीं है, 2 बज गए हैं, बच्चे सोते नहीं है रात को। आप देखो कि हमें एक्सपीरियंस ही नहीं है। अब बीजी मेरी सास कहा करती थी, तू बताने जाएगी कि माँ बाप कैसे बच्चों को पालें, वो तेरे से पूछ के पालेंगे अपने बच्चे। और मैं कहती थी नहीं बीजी, मुझसे पूछ के नहीं पालेंगे, मुझसे सिर्फ सुन लेंगे, बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, तो उससे एक्सेप्टेंस आती है। अब कई पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमारा बच्चा ना टिक कर कहीं बैठता नहीं है। मैं पूछती हूँ कितने साल का है, 4 साल का, क्लास में भी भागता है, बाहर भाग जाता है, बाहर भी उसका दिल नहीं लगता, फिर क्लास में आ जाता है, दूसरे बच्चों को मारता है, कूदता है, पीटता है, सब कुछ करता है। मैंने कहा कि पहले तो मुझे बताओ कि सोता ठीक है, हाँ सोता ठीक है, सोते सोते हिलता है, नहीं सोते सोते हिलता नहीं है। मैंने कहा खाना एक जगह बैठ के खाता है, नहीं, भागता है खाते हुए। मैं खिलाती हूँ, माँ कहने लगी, तो वो मुझे पूछती हैं 4 साल के बच्चे को मैं खाना खिलाती हूँ, क्यों खिलाती हूँ मैं, क्योंकि ये अपने आप खाता नहीं है। मैंने कहा खाता नहीं है, नहीं मतलब खाता है पर 2 घंटे लगा देता है, तो 2 घंटे बर्बाद हो गए, फिर सोएगा कब, फिर उठेगा कब, फिर स्कूल का होमवर्क कैसे करेगा। मैंने कहा कभी बिस्तर गीला किया, नहीं, पैदाइश नॉर्मल थी, नॉर्मल डिलीवरी थी, हाँ। मैंने कहा कभी इंक्यूबेटर में या
बर्थ वेट लो था या ओवर था, नहीं। कभी बीमार हुआ, ऑक्सीजन लगी, नहीं। मैंने कहा अच्छा इसके पापा क्या करते हैं? इसके पापा तो इसको बहुत प्यार करते हैं, इसके बिना तो रह नहीं सकते। जैसे ही दुकान से वापस आते हैं इसको खूब होल डोल करते हैं, हवा में उड़ाते हैं, लेते हैं, हवा में उड़ाते हैं, लेते हैं। और मैंने कहा बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन कभी आपने देखा कि आपके बच्चे को ये वाली बात पकड़ना अच्छा लगता है या वो डरता है? तो कहने लगी उसको नहीं अच्छा लगता, वो रोता है। मैंने कहा फिर ये कैसा लाड है कि जो बच्चे को बुलाए? Some children don't want to be thrown in the air and held. They become insecure. They are unsure. अच्छा फिर क्या करते हैं? थका मारते हैं, इतना खेलते हैं उसके साथ, इतना गोल मोल करते हैं कि वो थक जाता है। पर वो सीखता क्या है? हिलो, खूब हिलो। ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन है, हो सकता है कि उसे अटेंशन डेफिसिट हो, हाइपर एक्टिविटी हो, या अटेंशन डेफिसिट ना हो, केवल हाइपर एक्टिविटी हो। मामूली सा टेस्ट है, करवा लो, इससे कोई बच्चा पागल नहीं होता। अब मैं आपको याद कराती हूँ, आप में से कितने लोग हैं जो जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं? ओके, तो आप उस दिन क्या करते हैं? झूला सजाते हैं, कृष्ण गोपाल का एक खिलौना बना के रखते हैं, फिर उसका झूला झुलाते हैं, फिर उसकी गाथाएं सुनते और सुनाते हैं। वो कितने नटखट थे। गांव की औरतें तंग आई हुई थी, पर उनको आप भगवान मानते हो और अपने बच्चे को दुष्ट क्यों? ये तो गलत है। अगर आज की डेट में कृष्ण जी पैदा होते, वो जरूर अरुणा ब्रूटा को रेफर होते, क्योंकि वो ADHD थे, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर था। पर वो भगवान फिर कैसे बन गए? यशोदा मैया के पास सारे गांव की औरतें आईं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा ये तेरे पेट से तो था नहीं, तो तूने अगर गोद लेना था तो देखभाल के लेती, कोई समझदार बच्चा लेती, सयाना बच्चा लेती, दुष्ट क्यों लेके आई? यशोदा मैया ने क्या कहा? यशोदा मैया ने कहा दुष्ट नहीं है, नटखट है, बहुत नटखट है। कितना खून बढ़ा होगा कृष्ण जी का एज अ बेबी, एज अ चाइल्ड, कि मेरी माँ मुझे इतना एक्सेप्ट करती है, मेरी माँ मेरी इतनी प्रशंसा करती है। वाओ, रियली वाओ। लेकिन आज की माँ, क्या करूं, कोई मिलने आ जाए उसकी निंदा शुरू, बैठता ही नहीं है, खाना ही नहीं खाता, 4 साल का हो गया। 4 साल क्या होते हैं 4 साल? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे 4 साल का बच्चा नहीं कोई बुढ़ा होता है। ये एक अमेरिकन या वेस्टर्न थिंकिंग। बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाओ फ्रॉम फूड। एक हिंदुस्तानी माँ का क्या रिश्ता है अपने बच्चे से, पेट से? क्या खाएगा, क्या पिएगा? हलवा बना देती हूँ, पराठा सेक देती हूँ, तो उस वक्त आपको याद आएगा हरी सब्जी तो खाता ही नहीं। अरे दिल पे हाथ रख के तो बताओ, आप खाते हो? सॉरी, मैं नहीं खाती।
पर मैं ऐसी रेसिपीज आपको दे सकती हूँ जहाँ पे हरी सब्जियों का सेवन है पर किसी को पता ही नहीं वो क्या खा रहे हैं। वो सोचते हैं राजमा खा रहे हैं, वो सोचते हैं चने खा रहे हैं, वो सोचते हैं छोले खा रहे हैं। झगड़े की जरूरत ही नहीं है। ऐसे नहीं नाक पकड़ता बच्चा तो ऐसे पकड़वा लो, मतलब तो हरी सब्जी से है ना, तो घर में जंग क्यों? नहीं, डोंट फाइट विद योर चाइल्ड, नेगेटिव हो जाएगा। कई पेरेंट्स मेरे को आकर कहते हैं ये ना गौर से पढ़ता नहीं है। कितने साल का है? 5 साल का है, 6 साल का है, टिक के पढ़ता नहीं है, ध्यान कहीं इधर उधर चला जाता है। और मैंने कहा टीवी देखता है? हाँ हाँ, कार्टून नेटवर्क तो लगा ही रहता है। और वो किसका है? उल्टा चश्मा, तारक मेहता का कुछ ऐसा प्रोग्राम है, सारा दिन बच्चे देखते हैं। उसमें कैसे ध्यान लग जाता है? ये पेरेंट्स मुझे पूछते हैं। तो बच्चे की अटेंशन, इसका मतलब पढ़ाई में ही नहीं है ना, इसका मतलब कि इसके विचार अच्छे नहीं है, ये सीरियस नहीं है अपनी पढ़ाई में। 5 साल का बच्चा, आप तो बीए में भी सीरियस नहीं थे, छोड़ो, किसको इम्प्रेस कर रहे हो? मंजू मैम, मेरा बड़ा लड़का 54 इयर्स का है और मेरा छोटा 46, 9 साल का फर्क है दोनों में। मुझे क्या आप बता रहे हो? पेरेंट्स क्या बताना चाहते हैं? हम तो बड़े सीरियस हो गए थे, हम तो माँ बाप से डरते थे तो हम जरूर पढ़ते थे, डर के पढ़े तो क्या पढ़े, तभी मेमोरी लॉस होता है, क्योंकि इंटरेस्ट से नहीं पढ़े। हमारा काम है इंटरेस्ट क्रिएट करना, न कि डांटना, ताने मारना, क्रिटिसाइज करना। लेकिन मैं बात कर रही थी स्पैन ऑफ अटेंशन की, कि बच्चे का स्पैन ऑफ अटेंशन कितना होता है। किसी पेरेंट ने मुझे कहा 10 मिनट्स, किसी ने मुझे कहा 20 मिनट्स, किसी ने कहा हाफ एन आवर। तो मैंने कहा रियली? तो कहते हैं हाँ, टीवी के आगे तो बैठा रहता है ना, वहां तो नहीं हिलता, ये वहां से उठता नहीं है, तारक मेहता से नहीं उठता, कार्टून नेटवर्क देख लो तो बिल्कुल ही नहीं उठता। ओके, और ऐसा बुद्धू है, रोज रोज वही प्रोग्राम, फिर रिवाइंड, फिर वही प्रोग्राम, तंग नहीं आ जाता? और मैंने कहा आपको क्या लगता है कि वो जो 20 मिनट बैठा है वो प्रोग्राम देख रहा है? अगर डोनाल्ड डक ने खरगोश की पूंछ दबाई या उसका पैर दबाया, या किसी और ने डोनाल्ड डक को दबा दिया और फिर वो छोड़ दिया और वो टॉम करके गिरा, उसके बाद क्या हुआ उसको नहीं पता, आपके बच्चे को। क्यों? अरे वो देख तो रहा है, उसको पता होगा। नहीं, जब डोनाल्ड डक ऐसे जाके गिरा तो इसका ख्याल कहीं और था, ये कह रहा था टीचर को भी मैं एक दिन ऐसे ही करूंगा। बहुत डांटती है, बाथरूम नहीं जाने देती, क्लास में बातें नहीं करने देती, फिर बार बार कहती है जल्दी करो, बेल इज गोइंग टू रिंग, फिनिश योर ड्राइंग, फिनिश योर कलरिंग। वो कहाँ देख रहा है? वो तो सोच रहा है। उसकी तो अटेंशन कहीं गई, टीचर में, पापा में, मम्मी में, दादी में, कहीं भी गई। So if you think that your child is sitting there for even 1 hour and he is concentrating on what he is watching, no. And this is the reason कि वो दोबारा देखना चाहता है और फिर तिबारा देखना चाहता है। और ये कब हुआ था? ये तो मुझे याद ही नहीं है। इसलिए नहीं कि उसकी मेमोरी पुअर है, इसलिए कि जब टॉम का आवाज आई थी तो वो सोचने लगा मैं भी अपनी टीचर को ऐसे करूंगा, या मैं अपने फ्रेंड आकाश को ऐसे करूंगा, या वो जो मेरी क्लास में लड़की पढ़ती है ना रोहिणी, उसके भी पैर को मैं दबा दूंगा।
उसने कल मुझे अपना रबड़ नहीं दिया था ना, मैं उसका पैर दबाऊंगा आज। तो प्रोग्राम तो निकल गया ना, इसीलिए वो दोबारा देखता है, तिबारा देखता है, चौबारा देखता है, क्योंकि स्पैन ऑफ अटेंशन छोटा है। और इसका एक सबूत दूंगी मैं आपको। आप ऑफिस से आए, बच्चे ने कहा पापा आ गए, पापा आ गए, पापा ने गोदी में ले लिया। चाइल्ड इज 1 year, 1.5 years, 2 years, पापा ने गोदी में ले लिया, राइट? अब इसने क्या किया, लाड से आपकी ऐनक छीन ली। अब आप डर रहे हो, अगर इसने ऐनक नीचे गिरा दी तो मेरे तो स्पेक्स खराब हो गए, टूट गए, कुछ भी हो गया, फ्रेम बहुत महंगा है। तो आप क्या करते हो, अब उसको कहते हो दे 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 दे, फिर आप उससे छीनते हो। जब आप उससे छीनते हो और छुपाते हो, बच्चा आपकी गोदी में क्या करता है, छीना के। और पापा आप क्या करते हो, ची ले जा, और वो देखता है कौन सी ची, और उसका ध्यान पलट जाता है, स्पैन ऑफ अटेंशन। फिर आप कहते हो चलो बाहर, चलो तुम्हें बाहर घुमा के लाऊं। आप कहीं सड़क पे ले गए, कहीं पार्क में, कहीं भी आपने देखा, वो पेड़ देखो, वो पत्ते देखो, वो चिड़िया देखो, उस पेक्स को भूल गया, राइट? स्पैन ऑफ अटेंशन, कितनी जल्दी उसका ध्यान पलटता है। तो आप चाहते हो कि वो आधा घंटा खाना ही खाता रहे, आप चाहते हो वो आधा घंटा अपनी नोटबुक लेके ए लिखता रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? आप तो अभी भी नहीं बैठ के न्यूज़पेपर भी नहीं पूरा पढ़ती हैं आप। सो कुल मिला के अंडरस्टैंडिंग की बात है। आप बच्चे को अपने से कंपेयर करते हो जब आपका ब्रेन बहुत वेल डेवलप्ड है, उसके ब्रेन की मांसपेशियां अभी बनने को चल रही हैं, अभी वो टिकी नहीं है। जब बच्चा पैदा होता है तो दादी क्या कहती है, बेटे इसके सिर में यहाँ हाथ मत रखना, ये सॉफ्ट एरिया है, दबाना मत। बच्चे को क्या कहते हैं, इसके सिर पे हाथ रखो, क्यों? क्योंकि गर्दन के पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड है वो अभी डेवलप नहीं हुई है, उसके मसल्स डेवलप नहीं हुए हैं, उसको होल्ड कर सके स्पाइनल कॉर्ड को। तो आप सोचते हो ओके तब तो ठीक था, अब तो वो चल फिर रहा है, भाग रहा है। तो कितना समझदार हो जाए, जितनी मैं हूं। और आपकी उम्र क्या है, 30, 25, 26, 22, 23, if it's your first child, it's because mentally आप matured नहीं हैं to understand कि मैं अपने बच्चे से क्या expect करूं। Therefore I say अपने से मत कंपेयर कर। भाभी, बड़ी भाभी हैं घर में, उनके बच्चों से मत कंपेयर करना। पहली बात वो बड़े हैं, दूसरी बात लड़के और लड़की में अंतर होता है, तीसरी बात हर एक का अपना ग्रोथ पैटर्न है। ये जरूर समझो कि हमें बच्चों को हेल्प करना है, ना कि डांटना है और डांट डांट के बड़ा करना है, तभी वो नेगेटिव बनते हैं। 5 लाख बार ना ना, नहीं जाना, नहीं करना, अभी नहीं लेना, अभी चॉकलेट और नहीं खाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मेरी ग्रैंड डॉटर टेलीफोन पे अपनी फ्रेंड को बता रही थी, शी इज अबाउट व्हाट
ये कोई 2-3 साल पुरानी बात है, शी इज नाउ 10 years old। तो अपनी फ्रेंड को बता रही थी, मुझे तो एग्जाम्स में डर नहीं लगता, तुझे क्यों लग रहा है? सिर्फ मुझे बस मैथ्स में थोड़ा सा डर लगता है। मैंने कहा डर लग रहा है, चॉकलेट खा लो। वो उसकी फ्रेंड ने टेलीफोन पे सुन लिया, तो वो कहती है ये कौन है, तेरी मम्मी है? उसने कहा नहीं, दादी है। तेरी दादी कह रही है चॉकलेट खा ले? मेरे पेरेंट्स तो मुझे परमिट ही नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या होता है? ऐसे पड़े रहते हैं। खाओ, मेरी उम्र में आके थोड़ी खाओगे, जितना जी भरना है भर लो। उससे क्या होता है? आपका रिश्ता बच्चे से अच्छा होता है। उससे क्या होता है? बड़े होके वो यही सोचता है कि वही माँ है जिसने ना नहीं करी। मैंने ये नहीं कहा कि गलत बात पे ना मत करो, लेकिन एक्सपेक्ट करते हो कि बच्चा एडल्ट की तरह बिहेव करे, फिर वो बच्चा क्यों है? सो अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल 3 साल के बच्चे मोबाइल एडिक्ट हैं। किसने उनको बनाया? आप भी फ्री टाइम में खेलती रहती हैं मोबाइल से, और पापा भी। पापा ऑफिस का भी काम करते होंगे मोबाइल पे, लॉकडाउन है। और बच्चे को कई बार एक मोबाइल पकड़ा भी देते हैं पीछा छुड़ाने के लिए। वहां से आदत पड़ती है। फिर आप लाड करने के बहाने वापस नहीं लेते, उससे एडिक्शन शुरू होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उसमें। थोड़ा ध्यान करो कि हम दें टेलीफोन बच्चे को उम्र के हिसाब से, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, उसके बाद ले लें फोन। वही वाली बात है, ची ले जाओ, लेकिन खुद भी जब फैमिली टाइम है टेलीफोन नहीं उठाओगे। जब फैमिली टाइम है, मान लो आपका काम ही मोबाइल पे है, आपकी मीटिंग्स चलती हैं, कॉल्स आती हैं, सेशंस होते हैं, एग्रीड, लेकिन इसके बावजूद आप भी कोई कम नहीं हो। तो मैं सारा दिन काम कर करके थक जाता हूँ। एक फादर मुझे कहते हैं तो मेरा भी तो मन करता है कि मैं गेम खेलूं। भैया नहीं, एक बहुत बड़ा अपराध आपने किया है, आपने बच्चा पैदा किया है, आप उसके लिए रोल मॉडल हो। ये वरुण धवन और ये सब जितनी एक्ट्रेसेस हैं, श्रद्धा, ये इनके हीरोज बहुत बाद में बनते हैं। आप हो उनके रोल मॉडल, आप उनके हीरो हो। जो आप करोगे वैसे ही वो करेगा। आप सोचिए आप क्या कर रहे हो, और फिर देखो बच्चे क्या कर रहे हैं। आप स्मोक करते हो और आप बच्चे को कहते हो कि तेरे से स्मेल कैसी आ रही है? कुछ नहीं पापा, कुछ नहीं, कुछ नहीं पापा। उसने ट्राई किया अपने दोस्त के साथ, एक्सप्लोर किया। रोल मॉडल कौन है? पापा। आपने उसे घर में इतना इंगेज नहीं रखा, इतना लुभा कर घर में नहीं रखा कि वो ऐसे दोस्त बनाता है। कैसे दोस्त? जैसे आपके आते हैं और आप पीते हो, आपके आते हैं दोस्त तो आप सिगरेट फूकते हो, या आप बाथरूम में टॉयलेट जाते हो तो आप सिगरेट फूकते हो। और बच्चा सीखता है, आपकी शैडो है, आपकी इमेज है। और बच्चा कहीं आसमान से कोई गलत बातें नहीं लेके आता। उसके दोस्तों को आप धिक्कारते हो। आपने कभी उसके दोस्तों को घर बुलाया डे स्पेंड करने के लिए, हैप्पी बर्थडे के लिए नहीं। हैप्पी बर्थडे तो साल में एक बार,
पर महीने में एक बार आपने डे स्पेंड करने के लिए बच्चों को 5-6 बच्चों को बुलाया, फिर इसको भेजा, तो आपको पता चले कि इसके फ्रेंड सर्कल कैसा, तोड़फोड़ करने वाला, भाषा गंदी बोलने वाला। जानते हैं 3 साल की लड़की ने कहा, पापा आज जल्दी आना, हम बाहर जाएंगे, मैं लॉकडाउन में तंग आ गई हूँ, सिर्फ ड्राइव के लिए। पापा ने कहा बेटे आज मैं नहीं जल्दी आ सकता, सॉरी। माँ ने बोल दिया हाँ भैया क्यों आओगे तुम, पैदा करना तुम्हारा काम था, अब भागना तुम्हारा काम है। फादर ने कहा बकवास ना कर, एक लगाऊंगा ना सीधी हो जाएगी। वहां से दादी बोली इसको तो पति के साथ बात करनी ही नहीं आती, माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं, बच्चा देख रहा है। लड़की ने कहा पापा आप आओगे कि नहीं? पापा ने कहा नहीं मैं नहीं आऊंगा, मेरे आज ऑफिस पार्टी है। पार्टी, मैंने नहीं कहा पार्टी छोड़ के आ जाओ, वर्ड ना यूज करो पार्टी, आप बोलो मेरी मीटिंग है। तो लड़की ने क्या कहा, जो बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, 3 साल की लड़की ने अपने फादर को कहा फक यू। उसे पता ही नहीं है कि इसका अर्थ क्या है। उसने सुना फादर को कहते मदर को, उसने कहा मदर को सुना ये वर्ड यूज करते दादी के लिए। So she also learns it. She doesn't understand what it means. तो हमें अपनी भाषा पे कंट्रोल करना है, हमें सुनना है कि हमारे पापा मम्मी दादी दादू नानी नानू क्या बोलते हैं, हम वही भाषा बोलते हैं। मेरी दादी कहा करती थी बड़ा स्यापा, और पता ही नहीं स्यापा क्या होता है। तो मैं मेरे ख्याल से 5 या 6 साल की, और मैंने बोला, दादी ने बोला कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा डे स्पेंड करने अपनी फ्रेंड के साथ। क्यों जा रहे हो? तो मैंने बोला कि स्यापा करने। पता ही नहीं मीनिंग क्या है, वो हर वक्त बोलती थी स्यापा ही है, स्यापा ही है, समझ नहीं आ रही थी क्या है। So we are just dummies. We pick up everything from our parents. And there is family politics, family dynamics, and it gets expressed through language. And that language children pick up. That's very important. बच्चे चोरी करना सीखते हैं। कैसे? चोरी आपकी नजर में ये वर्ड है। 3 साल में 4 साल में गए, बड़ा प्यारा एक पेंसिल बॉक्स किसी का देखा, उठा के अपने बैग में डाल लिया। माँ ने मारा खूब, तू चोर है, तेरा बाप चोर नहीं है, तू क्यों चोर है? अरे कृष्ण भगवान जी चोरी नहीं करते थे, और चोरी करके बोलते थे मैं नहीं माखन खायो। अरे घर में तो कोई और है ही नहीं, आप हैं और आपकी मदर है यशोदा मैया, और आपके मुंह पे मक्खन लगा हुआ है, मैं नहीं माखन खाया। तो मेरे से काम करवाती है, मैं नहीं माखन खाया। हाँ तू सौतेली माँ है इसलिए तू मुझे कह रही है कि मैं नहीं माखन खाया। झूठ पे झूठ पे झूठ पे झूठ। यशोदा मैया ने क्या कहा, सौतेली मत कहना मुझे। रोई तो कहते हैं हाँ मैंने ही खाया। तो माँ कहती नहीं नहीं तूने नहीं खाया। अब दोनों इस बात पे लड़ रहे हैं। कृष्ण भगवान जी को आप परमिट करते हो सब कुछ, और फिर उन्हें भगवान कहकर फिर व्रत एंड ऑल दैट। अपने बच्चे के लिए कोई फॉरगिवेंस नहीं है। आप उसे सजा दे सकते हो, लेकिन चोर कहने की क्या जरूरत है? वैल्यू एजुकेशन।
वैल्यू एजुकेशन लफ्जों से नहीं होती है, मॉडलिंग से होती है। बच्चा सुनता है, माँ फोन करके हस्बैंड को कहती है इसके रजिस्टर्स खत्म हो गए हैं, आज दुकानें बंद हैं, ऑफिस की कोई भी वो स्टेशनरी उठा लेना, घर में मैंने बहुत सारा काम कराना है इसको, कल दुकानें बंद हैं। ऑफिस से उठा लाना, तो मैं स्कूल से उठा के लाया तो मुझे मारा और पापा को कुछ बोल रही हैं लेके आ। आप सोचो आप क्या करते। अच्छा, मैं तो बहुत बोलती हूँ, बोली भी जाऊंगी, आप तंग भी आ जाओगे कि बस करे, सिर थक गया सुन सुन के इसकी बातें। कुछ पूछना चाहते हो पूछो, मैं फिर शुरू हो जाऊंगी। सो वर्धा मैम, कुछ देखिए अगर Sure, ma'am. कोई लेना चाहता है। Sure, ma'am. Sure. Yes, thank you so much, Aruna ma'am. It was amazing session. I mean, our attention was glued to the screen the entire time, and I was all ears listening to you. It was such a wonderful address. So now I would like to invite Ms. Sunali Prakash to take us through the new leaf in the chapter of A Child's Life. Thank you so much, Arda ma'am. Thank you so much, Dr. Bruta, for the enriching session. I think all the parents will agree with me that sometimes we, though being aware, set unrealistic goals for the little ones. We always need to bring ourselves to their level to understand their pace. Like Charles R. Swinton has rightly said, each day of our lives, we make deposits in the memory banks of our children. And please always remember, your children will become who you are. So be what you want them to be. We have discussed about what we need to do as parents. Now, I would like to discuss the role of school and teachers in a child's life. After home and parents, the most important impact in the life of a child is of her teachers and the school. We at St. Anandram Jaipuria School focus in giving a memorable teaching learning experience to our students, which they cherish for a lifetime. There has been an evolution in the education field, with the rote learning pattern taking a backseat and experiential learning along with integration of subjects and multidisciplinary approach taking the forefront and even raising the success level. We at St. Anandram Jaipuria School have upgraded our methodology, and its success has been proved by the exemplary results of our children in the board exams as well as in other co-curricular activities. We have been the only school in the area to give all India CBSE rank holders in both class 10 and 12 for 2 consecutive years. Very good. We need to give maximum exposure and facility to our students to excel in life and become responsible change agents. To prepare the young minds for future, we aim at the overall development of the students. At St. Anandram Jaipuria School, we follow experiential learning, which gives students a platform to explore and get hands-on experience, which in turn makes complex concepts more clear and interesting. Recall your school days. There were some subjects we liked, but some we totally disliked. Why was it? We used to always think, why are they in the syllabus? What benefit will we get by studying them? Most common phrases each one of us must have used while in school, isn't it? The simple reason is that we were not taught like the way we teach here. The reason for liking or not liking a subject lies in its understanding. If we understand a subject, interest in it is developed and hence we start liking it. Here comes the role of methodology used to impart the knowledge. We use interactive learning methods and encourage
learning by doing the activities to develop interest in learning. Creative instincts of children are stimulated with design thinking and they create new gadgets. Project-based learning, science on wheels, STEM, the full form of which is science, technology, engineering, and mathematics education, inculcates interest for learning the concepts on their own. Art integrated curriculum and multidisciplinary approach is practiced in the school and includes music, dance, sports, drawing, painting, culture, etc. It is very important to understand the new age education system. Students are given platform for experimenting and trying out new ideas. For this, St. Anandram Jaipuria School has a fully equipped state-of-art Atal Tinkering Lab for do-it-yourself learning across multiple disciplines like aeromodeling, hydraulics, mechanics, electronics, and robotics. It encourages exploration and innovation and is an excellent platform to display tech innovation and creativity. With the help of experienced teachers and experts to guide, we promote learning by doing and trial and error method. This prepares students with the skills required for workplace of today and tomorrow. To enhance the mathematical skills in students and make teaching learning process child-centric, Khan Academy videos are a great help. It is an excellent complement to classroom lessons as it gives flexibility and personalized learning. One of the most important things we do throughout our lives is managing our finances. A new initiative to teach financial literacy to children from a very young age is taken up by the school. To develop a habit of saving, know about budgeting, insurance, use of checks, plastic money, bitcoins, etc. And to make students aware about the online payment modes, online safety, about assets, liabilities, taxation system, loans, EMIs. This area has remained untouched by schools till now. Children learn money management that leads to financial health and happiness. The COVID pandemic has made all of us realize the importance of taking care of our health and living a safe life. It is weaved into the curriculum. It also focuses on community and environmental health and helps in a balanced emotional and mental growth. We all want our children to lead a balanced and happy life, and this can be achieved through self-awareness, empathy for family, peer, people, society, and nature. Social emotional learning helps to develop responsible decision-making and relationship skills. This boosts confidence and positivity in children, helps them develop problem-solving skills. It also strengthens and reduces behavioral problems and adolescent depression. It inculcates social empathy and well-being. It is very, very important to monitor the growth and progress of students on a regular basis. Personal and special attention is provided wherever required. Early identification and remedial education ensures that every student gets equal access to educational resources. We have experts to interact and support students and parents by giving one-to-one specialized sessions, providing 100% attention to the student and his/her needs with a personalized education plan. Similarly, career choice is important and sometimes very confusing for both students and parents. We help the student design his/her career profile with aptitude tests and other detailed assessments, and also help them understand new and emerging career pathways. Our career counselor has been proficient in handling scholarship applications as well. A few of our students have received scholarships such as Jefferson Scholarship, Robertson Scholarship, and the prestigious Next Generation Scholarship. We have recently witnessed the role of technology in all spheres.
Education, which was never ever thought to be online, has become totally virtual in an attempt to continue a non-stop learning process. The biggest situations like this pandemic could not stop the education process. Technology and new age learning go hand in hand. We train students to use technology smartly and empower them with tech know-how to become change makers of the digital age. It greatly improves collaborative, critical thinking, and creativity. Children participate in global technology contests and competitions and get exposure to new age technologies. We are proud to be the recipient of certificate for being most technically advanced school in UP by National School Awards 2020. It is for the commendable victory in the upliftment of education and making children future ready. Parents, you are an important stakeholders and your feedback is very important to us. We always strive to create a strong bond with each one. We have parent engagements through parent-teacher forums, orientations, etc. We have parents as active members in various school committees. Parents, we need your support. We would love to have you in school to motivate children and let them know about your life journey and your expertise. Parents are invited as judges in various school competitions too. In this journey of providing quality education, we have won great accolades and recognition. The most splendid moment was when our principal cum director, Manjurana ma'am, was conferred with the prestigious National Award to Teachers by the President of India in 2019. We are proud to have had all India rank holders in class 12 for 2 consecutive years. 5 students were facilitated by the Chief Minister for their exemplary results. In addition to academic excellence, our students and staff have gained recognition in all areas. Recently, Pihu Pant, student of grade 8 of St. Anandram Jaipuria School, got a special mention award in the 33rd IMUN online conference. Over 1,200 delegates from more than 45 countries participated. Pihu was a delegate of Venezuela in the WHO committee. Similarly, Abhinandan Adhikari has made us proud by participating in Earth Champions Workshop, which was conducted by UNICEF in collaboration with WWF, 9 is Mine and YUVA on 5th November 2020. The workshop had participants from different parts of India and had panelists from all around the globe, from countries like USA, Canada, Singapore, Australia, and India. These are just a few to be named. There is a long list which we proudly flaunt on our website. So you can just log on to our website and see the change that we are creating in the lives of children. It has always been possible with your support. To conclude, I would like to say that parents, teachers, and school together play the role in grooming and nurturing the child. So together we need to take up this huge responsibility of upbringing the future of the next generation. Thank you so much. Thank you so much, Sonali ma'am. Let us move on to the next session we all have been waiting for, and that is Q&A. We have already received a question in our question answer section. That is, Divya Jacob asks how to deal with a 4-year-old child who gets very angry very soon. Over to you, ma'am. Bruta ma'am. पहले मुझे ये बताओ आपके घर में गुस्सा किस किस को आता है? सबको. क्योंकि सबको. ओके. जनरली क्या होता है, 2 तरह की रिसर्च मिलती है साइकोलॉजी में कि गुस्सा आना भी जेनेटिक है, और दूसरी रिसर्च है कि जब बच्चा देखता है कि घर में और लोग ऊंचा बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, तो उनकी बात मान ली जाती है, तो वो समझता है कि ये बिहेवियर एक पावरफुल बिहेवियर है, तो मैं भी गुस्सा करके दिखाऊं. तीसरी बात, अगर पहली बार वो ऊंचा बोला, जिद करा, गुस्सा करा, चीजें फेंकी और आपने उसकी बात मान ली,
तो वो खुद ही रियलाइज कर लेगा, अगर घर में कोई भी नहीं है इतना गुस्से वाला कि मैं गुस्सा करूंगा तो मेरी बात मान ली जाएगी। देयरफॉर आई से, जब भी बच्चा कुछ मांगता है, पहले हम उसको तय करें अपने दिमाग में कि ये करना है हमें या नहीं करना है। अगर नहीं करना तो अटल रहे, तब वो शीशा भी तोड़ दे पर उसकी बात ना माने, लेकिन माफ करना जायज ना होनी चाहिए। ना जायज नहीं कि मैं माँ हूं इसलिए मेरा वीटो पावर है, मैं हाँ करूं तो हाँ, मैं ना करूं तो ना। नहीं, मान लो एक बच्चा कहता है कि मुझे पार्क में खेलना है और लॉकडाउन है, तो आप मास्क पहना के दोनों जने जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं 10 मिनट में, 5 मिनट में, और फिर किसी पुलिस वाले से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि बाहर जाना अलाउड नहीं है, समझ जाएगा। पर अगर आप घर में जिद 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 करेंगे तो वो भी जिद्दी बनेगा और गुस्से वाला बनेगा। सोच लो। Ma'am, Divya, Jacob has also said that, but I am not a person who gets angry very soon. My elder child doesn't do that. He is little different. The younger one, I believe, is little different, and he gets very angry very soon. In fact, he gets aggressive. So, yeah. I will say, दिव्या मैम, कि घर में ये कहीं ना कहीं से आया है। चाचे, मामे, ताऊ, दादे, नाने, बुआ, मौसी, किसी में ये मूड स्विंग है कि गुस्सा आता है। दूसरी बात, आप फिर कंपेयर कर रही हैं कि मेरा बड़ा बच्चा डिफरेंट है। हाँ, सारे डिफरेंट हैं। मेरे ब्रदर्स मेरे से डिफरेंट हैं, मैं आपसे डिफरेंट हूँ। सो वी आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। फिर क्या हुआ अगर बड़ा बच्चा डिफरेंट है? छोटा बच्चा अगर गुस्सैला है इसलिए कि वो लाडला है, छोटा बच्चा कभी भी ये ना सुने आपके मुंह से बड़े को कहते हुए, तू बड़ा है ना, जाने दे, तू बड़ा है ना, तू प्यार कर ले, अभी वो छोटा है ना, प्लीज उसको बॉल दे दे, अपना पेन दे दे, अपनी ये दे दे। बड़े वाले को आप खराब कर रहे हो। मैं बड़ा क्यों बना? मेरे बेटे ने एक बार पूछा था, मम्मी मैं पहले क्यों पैदा हुआ था? क्योंकि दादी हमेशा कहती थी तू बड़ा है ना, मान जा छोटे के लिए। वो तो कितना छोटा है तेरे से, वो उसके दिल में तो बच्चा है ना। आपने भी तो सुना है ना, दिल तो बच्चा है जी, अभी कच्चा है जी। तो फिर आप इस तरह का कंपैरिजन कभी ना करें। और ये छोटा जो है ये सुनता है कि मैं छोटा हूं तो वो अपनी तड़ी छाटता है। बी केयरफुल ऑफ ऑल दिस। Thank you so much, Arnab. An amazing God answer. bless you. Yeah. All right, moving on. The next question is that a person is asking that my elder child hits my younger child and never admits his fault. Both are boys aged 8 and 3. How to handle them? पहली बात तो ये, जज मत बनना। आप कभी फैसला मत कराना, ये दोनों ही झूठे होते हैं। पहले इसने ये किया फिर उसने ये किया। छोटा कहेगा नहीं मम्मा भैया ने पहले ये किया फिर मैंने ऐसे किया। बोथ आर लायर्स, सो डोंट टेक देम सीरियसली। दोनों ही कृष्ण के अवतार हैं। और आप दोनों को, मेरे दोनों बेटे जब झगड़ा करते, ओ माय गॉड, अगर मैंने फैसला दिया, छोटा कहेगा आप तो उसकी माँ हो, बड़ा कहेगा आप तो उसकी माँ हो, मैं कहती दोनों यहाँ बैठ जाओ, खबरदार कमरे से बाहर निकले, दोनों ग्राउंडेड हो। 3 मिनट में मैं देखूं दोनों ही गायब, तो झगड़ा खत्म। लेकिन फैसला नहीं करना अपने, आप दोनों को इक्वल सजा दोगे। सजा क्या होती है? ग्राउंडेड, आप कमरे से बाहर नहीं जा सकते, आप इतने बजे से इतने बजे दोनों टीवी नहीं देख सकते, दोनों को सजा मिलेगी। चाहे एक कहे मेरा क्या कसूर था, मेरे को बिना बात में सजा दे रहे हो। हाँ, बिना बात के ही मिलेगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से बदतमीजी करते हो, कभी तुम कभी तुम, कभी तुम कभी तुम। सो दोनों को पता होना चाहिए कि ये आप जज नहीं है। आप कभी नहीं कहेंगे किसकी फॉल्ट है, दोनों ही झूठे हैं अव्वल दर्जे के, दोनों ही भगवान जी के अवतार हैं। ट्राई कीजिए,
कान बंद कर लीजिए ना, जब वो आपस में लड़ते हैं आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप कभी लड़े नहीं? जब आप छोटे थे लड़े नहीं? मैं तो अभी भी तैयार होती हूँ लड़ने के लिए अपने भाई से कि इस कुर्सी पे मैं बैठूंगी, तू नहीं बैठेगा। हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन तमाशा देखते हैं तो हम कहते हैं माहौल अच्छा बनता है, सब हंसते हैं, लो बुढ़े बुढ़े भी लड़ रहे हैं किसके ऊपर? एक कुर्सी के ऊपर। उनको याद दिलाते हैं कि it is only normal, natural to fight, to compete, to feel jealous, and then start loving each other again. That's very important. Okay. Wow. Thank you. Amazing answer. Amazing. All right. Yes, we have few questions wherein a person is asking that how to stop teenagers from things we think which are not important, but then they need it. So we'll have 2-3 questions here. आपकी आवाज कट रही है। Teenagers. Ma'am, question is that if a parent wants teenagers to stop doing certain things which are not important according to the parent, but then the teenager thinks that he needs it. Of course, he's a teenager. He will need so many things. उसको प्यार चाहिए, उसको इश्क चाहिए, उसको रोमांस चाहिए। वो कितनी ऐसी पिक्चरें भी देखना चाहता है। जब वो सुनता है कोई हीरोइन हीरो को कह रही है आई लव यू, तो वो बड़ी खुश होती है लड़की। काश मेरे पास भी एक बॉयफ्रेंड होता। कि पापा मम्मी कहीं जाने नहीं देते, सारी फ्रीडम कर्टेल कर देते हैं। तो मैं कहती हूँ नाटक देखो, लेकिन साथ साथ टीनेज बच्चों के साथ खेलो। क्या खेलो? कैरम खेलो, अंताक्षरी खेलो, लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है। इससे उनकी एंगेजमेंट और उनकी बॉन्डिंग आपके साथ ज्यादा अच्छी होती है। सिर्फ डांट नहीं होता कि आप डिसिप्लिन डांट से कर सकते हो, आप पार्टिसिपेशन से कर सकते हो, ठीक है, आप डाइवर्जन से कर सकते हो, लेकिन आप टोटली उसको अनरोमांटिक तो नहीं बना सकते। उसमें हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, आप क्यों डर रहे हो? अब ये तो होना ही है आगे आगे। सिर्फ ये है निगरानी रखनी पड़ती है, गलत रास्ते ना जाएं, गलत कंपनी में ना हो, किस तरह का फेसबुक पे अकाउंट खोला हुआ है। यू शुड बी वेरी पार्टिसिपेटरी। अगर अभी से आप ध्यान करेंगे तो बच्चों को नीड ही नहीं होगी। लेकिन कभी कभी कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने कोई गलती ना की हो, दिस इज हाउ दे लर्न। ये उनकी उम्र, हार्मोन्स की उम्र है। वी कांट condemn them, we can't criticize them, but we can explain things to them, but not bhashan. We have to be participatory with them. That is very 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 important. अंताक्षरी जैसे मैंने बोला, कैरम जैसे मैंने बोला, एक्सरसाइजेस जैसे मैंने बोला, कौन ज्यादा कर सकता है? चलो करो ना, स्टेशनरी जॉगिंग करो, एक जगह खड़े होके जंपिंग करो और देखो कि कौन ज्यादा कर सकता है। एक तो बच्चे की एनर्जी एक्सपेंड हो गई, आप तरोताजा हो गए, और हार जाना बच्चे से, फिर देखो बच्चे की कितनी तड़ी होगी घर में। हाउ नाइस, इट्स ब्यूटिफुल दिस टीनेज। अपनी एज भूल गए हो? बुआ का लड़का ही अट्रैक्टिव लगता था आपको, क्योंकि बाहर तो जाने नहीं देते थे उन दिनों में इतना। ठीक है, so try to remember your days and try to be positive rather than condescending, criticizing. ऐसे नहीं करना। Thank you. So amazing. All right, ma'am, I believe we have a question for Indu ma'am, and that is a parent is asking that I narrate a lot of stories to my child and she watches a lot of TV as well for stories. Then why is storytelling by teachers emphasized so much? Just a storytelling तरीका तो बड़ा ही फर्क होता है। That is very different. And हमारा storytelling जो है, हमारे पास वो न्यू टाइप ऑफ वोकैबुलरी नहीं है। टीचर्स आजकल के तो माय गॉड, मैं तो उनको गुरु मानती हूँ कि दे हैव लर्नड न्यू टेक्निक्स ऑफ कम्युनिकेटिंग विद चिल्ड्रन। पर ये जो बीच में आपने बोला कि वो टीवी बहुत देखता है, आई थिंक वी नीड टू कंट्रोल दिस, कि इतने बजे से इतने बजे टीवी चलेगा एंड आगे नहीं चलेगा। देन इट्स ट्रू फॉर यू ऑल्सो। You cannot watch TV for more number of hours and say मैं तो बड़ी हूँ। No,
You can't say that. You will have to say, okay, this is your time, this is my time. But even I will not go beyond 1 hour, and you also don't go beyond 1 hour or half an hour, whatever you fix for each other. So आप देखोगे कि जब आप उसके साथ पार्टिसिपेट करते हो, वो पढ़ेगा जरूर. किसको नहीं अच्छा लगता टीवी के आगे बैठना, खाली बैठे हो, वेले बैठे हो, कोई काम काज नहीं और सारी स्टडीज का कचरा हो गया, राइट? आपने तो उनके क्लास टाइम में खाना बना लिया, सब कुछ कर लिया, आप तो फ्री हो गए. दे डोंट अंडरस्टैंड टाइम मैनेजमेंट. So you have to teach them time management, and I think things will be better. Here, I would like to add, Vardha, like in our school, we have more story narration through using various teaching aids, puppet shows, and techniques we use like maintaining eye contact, gestures, related games, Look at and this. a lot of voice modulation to make the session interesting. And And after the story session, also we have a lot of activities like we have an interactive session, we have freehand drawing, we have activity related to it, and at times enactment is also done for the same. So building upon verbal proficiency, imagination, creativity, it enhances their listening skills and many more things. That is how we plan our story with the concept. Also, to introduce a concept, also we use stories. For life skills also we use stories, so we are using stories for various oh yes, aspects. That is the main objective. Vardha, I may like to add to what ma'am is saying. Storytelling is a test also in psychology, where you try to understand the mind of the other person through the kind of stories he tells and the kind of pictures he will narrate to us, which one he liked. So you can understand whether he is positive, he is negative, he is in depression, he is not in depression, or he is a criminal. There are lots of analysis. So storytelling is a very facilitating process if it is done with all these puppet shows and things like that. आपके तो दिल करता है कि मैं दोबारा पैदा होके अब दोबारा पढ़ लूं. So, so many teaching aids and methods are so nice. पर ये नहीं हो सकता कि आपका टीनेजर की तरह बिहेव ना करे. फिर something is wrong somewhere. Please. So let's proceed in a natural way. Thank you. Thank you. Wow, thank you so much. Thank you so much, both of you, Aruna ma'am and Indu ma'am. It was an amazing answer. Last question for the day, and that is how late schooling will affect my child's future, because the parent is thinking of taking a break on this for this particular academic year because of the fear of corona and infection. नहीं समझ में आया. Question क्या है? How? Ma'am, the question is how late schooling, like 1 year delay in schooling, is going to affect the child's future and child's psychology in But general. why is there a delay? Are you talking of this delay, COVID की delay? कुछ भी नहीं असर होता. क्या असर होता है? Classes हो रही हैं, ठीक है, virtual हैं. एक ये भी method है. You are at par with the world. You're not the only one. मैंने सोचा आप पूछ रहे हैं कि अगर लेट स्कूलिंग स्टार्ट की हो 4 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में, तब क्या इम्पैक्ट होता है? Yes, क्या actually, that is the question कि अगर मेन स्कूलिंग 1 साल डिले करा दे बिकॉज बच्चे को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम घर से बाहर नहीं भेजना चाहते बच्चे को, तो उसका क्या रेपरकशन होगा? दैट इज द क्वेश्चन. ऑनलाइन की फैसिलिटी तो है ना, आप टोटल एजुकेशन थोड़ी कट कर रहे हैं. सवाल ये पूछिए कि स्कूल खुल गए और मैं नहीं भेजना चाहता अपने बच्चे को, तो क्या होगा? सो अगर उसकी वजह से डिले है कि स्कूल खुल गए हैं पर आप इन्फेक्शन से डर रहे हैं, आई थिंक कि सारी प्रिकॉशंस लेके आपको बच्चे को भेज देना चाहिए, प्रोवाइडेड योर डॉक्टर हैज सेड दैट योर चाइल्ड्स हेल्थ इज परफेक्टली नॉर्मल. लेकिन अगर चाइल्ड ऑलरेडी वीक चेस्टेड है या डिसेबल्ड है या एस्थमेटिक है, ओके, वन कैन थिंक कि भाई कोई ऑनलाइन फैसिलिटी स्टार्ट करवा लेते हैं या कुछ है. बट otherwise when the school reopens, for heaven's sake, send your children to school. ऐसा क्या है? But at times parents feel that online
classes are not very fruitful. They at times feel, but I would still say they are very fruitful. Children get a connect with the teacher. See, the concept taught by a teacher in a structured manner really helps the child. And if they don't continue have a break for a year, the link is broken. The child will again start from scratch, learning to sit in the classroom, to connect with the teacher, to have a routine, follow a schedule. It becomes very difficult, I would say. So it's all, if the child is fine, as ma'am said, if the child is in good health, I think they should not give a break unless and until he has a health problem. And school will not open with taking precautions. They will be extra cautious, because the school is also concerned for the child. Our concern for the child is utmost. ऐसा है कि हम भी दूसरी माँ ही है, ऐसा नहीं है स्कूल बच्चों के लिए. बिल्कुल बिल्कुल. I will say, we can't. I will say, मैम मैं एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ. In 8th class, I lost my father. Okay. And मैं स्कूल में बहुत चुप चुप रहने लगी. I am a very extracurricular person. तो मैं बहुत चुप चुप रहने लगी. तो मेरी इंग्लिश टीचर जो मुझे इंग्लिश पढ़ाती थी, मिस बहल एट दैट टाइम, अब तो नहीं रही, वो लड़कियों से उन्होंने पूछा, अरुणा चुप क्यों रहने लग गई, अरुणा तो चहकती है. तो किसी लड़की ने बताया कि मैम शी हैज लॉस्ट हर फादर, सो शी हैजंट कम टू टर्म्स विद द एनवायरनमेंट. आप मानोगे नहीं कि शाम को वो घर आई और सड़क पे सारी शाम मेरे साथ सैर करती थी और मेरे को समझाती थी, तुम ये कर सकते हो, तुम वो कर सकते. इट्स अ मॉम, इट्स अ मदर. एंड मैं जो उस शॉक कंडीशन से निकली हूँ, इट इज बिकॉज ऑफ मिस बहल, माय इंग्लिश टीचर. अभी वो है नहीं और मैं उसके फैमिली को, मुझे नहीं पता कहाँ है वो, पर कोई नहीं सुन रहा. बट मेरा ग्रैटिट्यूड जो है वो कभी नहीं जाएगा कि मुझे उन्होंने उसमें से निकाला. और मैम एक दिन नहीं, वो 2 महीने आती रही शाम को. कोई ट्यूशन नहीं होती थी, मुझे मिलने आती थी, मुझे सैर करवाती थी और मुझसे उगलवाती थी, पिताजी क्या करते थे, पिताजी के साथ तुम क्या करते थे, पिताजी के साथ तुम शाम को क्या टाइम स्पेंड करते थे, एटसेट्रा एटसेट्रा. एंड I think a teacher is more than a parent, because parents फिर भी liberal हैं, वो मारते हैं, डांटते हैं. टीचर बहुत घुमा फिरा के समझाती है, उसके इतनी टेक्निक्स हैं, स्पेशली द मॉडर्न टीचर. आई डोंट सी एनी रीजन के अगर ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं तो बच्चे में ब्रेक आया है. बिल्कुल कोई ब्रेक नहीं आया. दिस इज ए न्यू टेक्नोलॉजी, वी ऑल अंडरस्टूड. आज मेरे जैसा बुढ़ा आदमी टेक्नोलॉजी की ओके लेके आपके साथ बैठा हुआ है. आपने मुझे भी बड़ा मॉड बना दिया अपने साथ, you know. But I think that if the child's health is okay and the schools are reopening, why only we depend on schools to take the precautions? Even the parents can make a child wear gloves and a shield, not just a mask, and send children to school. It is a new way of living. We all have to change our style of living. बिल्कुल क्या हमने अडेप्ट नहीं किया कि सिल बटे पे मसाला पीसते थे, अब मिक्सी में डाल के एकदम पिस जाता है. तो have we not adapted to different situations? So I see no reason why online teaching is hazardous. It is not hazardous. It is not harming. Thank God there is some connect with studies. और हमारी कोई दिनचर्या नहीं तो बच्चे तो पड़े रहे बिस्तर में, कभी उठे ही ना. सो आई थिंक इट्स अ बोन. पर अगर स्कूल खुल जाए और अगर डॉक्टर आपको कहता है कि योर चेस्ट इज फाइन, व्हाई डोंट वी गो टू स्कूल? बच्चा नहाता है, बाहर जाता है, सोशल स्किल्स सीखता है, कितनी चीजें स्कूल. इट्स नॉट जस्ट टेक्स्ट बुक लर्निंग. आई थिंक स्कूल इज बिरादरी ऑफ अ चाइल्ड हु लिव्स विद हिज एज मेट्स. घर में रहोगे तो बुड्ढों की तरह ही हो जाओगे. Ma'am, when we started our online classes, the nursery children, they needed their parents to sit with them. But after 2-3 months, children were handling the system independently.
They did Yeah, not yeah. need any support of the parent. Parent did not sit with the child. Now they don't. बिल्कुल, I agree with you. ये new normal है, ma'am. We have to all accept it. तो अब रोज कोई ना कोई न्यू नॉर्मल्स आने हैं. Have we not adapted? yes, Of course. We have adapted. Look, मोबाइल, हम कैसे मोबाइल यूज करते थे, डरते थे, हाँ, फिर खर्चे से डरते थे, फिर Correct. मोबाइल सस्ते होने लगे, उसके बिल्स कम होने लगे. First time I bought a mobile, 16 rupees per call जाना and 16 आना. Right? So धीरे 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 we all got used to things and all. ये तो एक है ही, एक life is a process of adjustment and we all adjust to new things. Correct. ऐसी कोई बात नहीं है. Very beautifully told, ma'am. Exactly, this is what. Thank you. I am so grateful, and I'm sure the parent will be grateful too, because the parent must have got an amazing answer from both of these experts. So, as I said, that was the last question for the day, and the Thank session you. has been very informative and fruitful. I am sure that it has taught us so many things we never thought of. To conclude the session for the day, I would like to extend my heartfelt gratitude to Dr. Aruna Bruta for her valuable guidance and time. I will also take this opportunity to thank Ms. Manju Rana for her constant support and guidance. Excuse me. I would also like to extend gratefulness to Ms. Indu Kohli and Ms. Sonali Prakash for leading us towards a better understanding of the functioning and facilities of the school. Last but not the least, I would like to thank each one of the participants in the webinar for their time and attention. You made the session worth it with your questions and participation. I would also like to acknowledge the IT team for their constant support and like to thank all those invisible hands who helped us make this session a great success. Thank you so much, everyone. Have a great day Thank you, ahead. Vardha. Thank you so much, Vardha. Thanks a for- lot. For the Thank opportunity. Thank you for being with me, for having me. Thank you very much. और आज It's an honor for us. last Ma'am, it is an honor for us to have you. Thank you. Thank you. And And last message parents के लिए है, बच्चों को गले लगा के रखो, प्यार करो, क्षमा करना सीखो और सब्र करो अपने बच्चों के साथ. सब्र का फल मीठा. Wow. thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Vardha, Thank you thank so you much. very much. We are getting a lot of compliments. Thanks a lot for such a wonderful session. Excellent webinar. Thanks a lot, ma'am. Then thank you for the wonderful session, ma'am. We are getting a lot of compliments right now. So yeah, thank you so much, everybody. Thank you.